Hello people, Namaskar. This is Rupal and I welcome you to our third lesson of English grammar series. I know the video has been delayed and I apologize for that. But I really want to thank all the people who are sticking to the channel and encouraging the content as well. Your comments, your likes, they mean a lot to me. Also, I am trying to put my best efforts and I'll keep doing that. I'm working hard to find a balance and make sure I can provide you with valuable content regularly. So let's jump into our today's topic, today's lesson, which is on nouns. Nouns, their types, examples, important facts that can be really useful in competitive exams. Let's start. So, what are nouns? What do you know about nouns? What I know about nouns? Let's start discussing that. There are different types, important facts, competitive exam में कैसे काम आते हैं. We'll keep it simple yet effective and plenty of examples. Okay? What is a noun? A noun is a name. Noun is a naming word. A noun is a naming word which can be given to person, place, thing or idea. A person can be a teacher, doctor, student. A place can be a school, city, India. A thing can be a bottle, car, phone. Idea can be love, freedom, democracy. And animals can be dog, cat, elephant, lion, tiger. Basics. Now let's talk about the types of noun. Nouns are divided into several types. Let's go through each type with examples. Let's understand the first one, which is proper noun. Proper nouns क्या होते हैं? Proper nouns वो nouns होते हैं जो किसी specific person, place या thing को नाम देते हैं. Okay? कोई भी particular जगह हुई, कोई भी particular इंसान हुआ, animal हुआ या चीज हुई, उसको एक specific नाम जब देते हैं तो हम उन्हें कहते हैं proper noun. और एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, आपको एग्जाम में भी काम आ सकती है, आपको कोई सेंटेंस दे दिया और उसमें प्रॉपर नाउन ढूंढने को कहा, तो आप बस इतना देखिए कि वो नाउन कैपिटल लेटर के साथ शुरू हो रही है या नहीं. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ और ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. फॉर एग्जांपल इंडिया, ताजमहल, मुंबई, लायन, टाइगर. Okay, these are all proper nouns because these are the names of some specific animals, place or things or persons. The days, the name of days, months, historical events like Monday, Sunday, July, November, World War II, some newspapers, the Hindu, the Times of India are also proper nouns. Now let's move forward to common nouns. What are common nouns? A common noun refers to a general name for person, place or thing. Okay, अब इसी में इसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है. मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी डॉक्टर की बात कर सकती हूँ. मैं बॉयज की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी बॉय की बात कर सकती हूँ. मैं टीचर की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी टीचर की बात कर सकती हूँ. I'm not saying Rupal. No, that is what proper noun is. If you said that Rupal is a teacher, then Rupal is what? Proper noun, whereas teacher is common noun. Also, common noun को तब तक कैपिटलाइज नहीं करते हैं जब तक वो एक सेंटेंस को स्टार्ट ना कर रहे हो. Okay? Understood? Now let's move forward to collective noun. What are collective nouns? Collective nouns, word समझ में आ रहा है? Collective, collect करना. तो it simply means जब भी हम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी चीज को एज अ सिंगल यूनिट देखते हैं. टीम, ओके, टीम, क्लास, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ओके, स्कूल ऑफ फिश. सो ये सब क्या है? ये सब है कलेक्टिव नाउन. एक इंपॉर्टेंट टिप जान लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत आता है कि आप बताएं कि कलेक्टिव नाउन ढूंढ के बताएं. And it's useful to know examples like pride of lions, bunch of keys, pack of wolves. ये सब आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस आ जाएगा और आपको पूछा जाएगा प्लीज underline the collective noun or maybe you will have to find the collective noun. So you know, जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं या सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं collective noun. Now the fourth one, abstract nouns. क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स
नेम समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन। बहुत सिंपल है, जिस चीज को आप छू ना सके या फिर देख ना सके वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप उसे सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख और छू नहीं सकते। जैसे कि आइडिया मैं छू नहीं सकती बट मेरे दिमाग में आता है। क्वालिटी, किसी की क्वालिटी क्या है मैं देख नहीं सकती बट आई नो इट, आई कैन फील इट। और स्टेट, आपका क्या स्टेट है? आई एम इन अ गुड स्टेट राइट नाउ। ओके, अब आई एम इन अ गुड स्टेट ये मैं महसूस कर सकती हूँ बट मैं इसे देख नहीं सकती। जैसे कि एग्जाम्पल्स लिखते हैं, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, डेमोक्रेसी। एक इंपॉर्टेंट टिप इसके लिए भी देती हूं, जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखें जो शन में, नेस में या ITY में एंड होते हो, ये एक सिर्फ टिप है, वो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे काइंडनेस, सेलिब्रेशन, डेमोक्रेसी, क्यूरियोसिटी। आई होप you have understood. You don't have to worry a lot about abstract nouns. Of course, we'll be discussing a lot of all kinds of noun in our coming classes. Now, let's move forward to concrete nouns. Abstract को आप छू नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन concrete nouns को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि बॉटल, कॉन्क्रीट है, मैटर है, जगह ले रहा है, सो कॉन्क्रीट है। डॉग, ऑफ कोर्स डॉग एक कॉमन नाउन भी हो सकता है, कॉन्क्रीट नाउन। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर कोई कॉमन नाउन दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग इज बार्किंग, दिस इज सेंटेंस, तो आप शायद डॉग को सिर्फ कॉमन नाउन टिक करेंगे या कॉमन नाउन समझेंगे, बट वो एक कॉन्क्रीट नाउन भी है। ओके, कॉन्क्रीट नाउन में प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स दोनों आती हैं और वो टेंजिबल थिंग्स जिनको छू सके उनको दर्शाते हैं। आप समझे ना? जैसे कि दिस बुक, दिस पॉट, दिस वैसलीन की डब्बी, अ पेयर ऑफ सिजर्स, ये सब क्या हुए? ये सब टेंजिबल थिंग्स है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्क्रीट नाउन्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं ऐसी चीजों को जिन्हें हम गिन सके और नंबर्स दे सकें। जैसे कि अ बॉटल, बॉटल्स, एन एप्पल, एप्पल्स, अ बुक, बुक्स, अ कैट, कैट्स। इनमें सिंगुलर फॉर्म भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेल बिकॉज यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। इनमें दोनों होते हैं सिंगुलर प्लूरल। नाउ जब भी हम देख रहे हैं एक ऐसी काउंटेबल नाउन को जो सिंगुलर है, जो सिंगुलर है, एक है, तो वो हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल लेके चलेगी। जैसे कि मैंने कहा अ कार, एन एप्पल, अ स्टूडेंट, अंडरस्टूड। लेकिन जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं उनमें आर्टिकल्स यूज नहीं होते until and unless you have to specify something like the bottles are filled, bottles भरी हुई हैं, वो bottles भरी हुई हैं, the books are on the table, वो किताबें टेबल पे रखी हुई हैं। And we also use quantifiers with countable nouns. Quantifiers क्या होते हैं? A few, many, several, some, ये भी countable nouns के साथ आते हैं। जैसे कि some books, few books, several books. There are some bottles in the fridge. There are few bottles in the fridge. There are many bottles in the fridge. Understood? जब भी आप चाहें कि रेगुलर काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बनाना है तो आप उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, जैसे कि टेबल, टेबल्स, बॉक्स, बॉक्सेस, पिलो, पिलोज, पॉट, पॉट्स। लेकिन कुछ काउंटेबल नाउन्स इरेगुलर होते हैं और उनका प्लूरल फॉर्म यूनिक होता है, जैसे कि men, men, child, children, person, people, tooth, teeth, foot, feet, है ना? कुछ ऐसे भी हमें नाउन देखने को मिलते हैं जो कि काउंटेबल नहीं होते पर हमें लगता है कि काउंटेबल है, जैसे कि फर्नीचर। वी ऑलवेज से पीसेस ऑफ फर्नीचर, वी डोंट से फर्नीचर्स। घर में फर्नीचर्स नहीं आते, पीसेस ऑफ फर्नीचर आते हैं, टेबल, चेयर, स्टडी टेबल, एनीथिंग। इंफॉर्मेशंस, इनकरेक्ट, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है ये भी। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो दिखते तो काउंटेबल है पर होते हैं अनकाउंटेबल, जैसे एडवाइस। अब आप सोचेंगे एडवाइस तो एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट सलाह, ठीक है, एडवाइस। लगेज, न्यूज। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको काउंटेबल नाउन आइडेंटिफाई करना है। द डॉग चेज्ड सेवरल कैट्स।
Dog chased several cats. Dog और cats दोनों countable noun है, एक है singular एक है plural. Okay? और बताइए, the books are kept on the table. Countable noun कौन सी है? Books. Table भी है, लेकिन क्या है वो? Singular है, और books क्या है? Plural है. Okay, now let's understand uncountable noun. What is an uncountable noun? An uncountable noun refers to things that cannot be counted individually. ऐसी nouns जिनको आप एक एक करके नहीं गिन सकते, जैसे कि बॉटल नहीं, बॉटल को तो गिन सकते हैं, तो बॉटल क्या हुई? काउंटेबल. एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल. इसके अंदर का पानी, यू कैन नॉट काउंट वाटर, so it's uncountable. Milk, furniture, advice, weather, oil, juice, सब अनकाउंटेबल है, इनको आप नहीं गिन सकते. अनकाउंटेबल नाउन, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, अनकाउंटेबल नाउन के भी प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, लेकिन उनको आप ऐसे वर्ड्स के साथ यूज करते हैं. कौन से वर्ड्स? सम, मच, अ लिटिल, इंस्टेड ऑफ नंबर्स. आप नंबर्स का प्रयोग नहीं करते, बल्कि करते हैं सम, मच, अ लिटिल. ओके, so now I hope that you have understood the types of noun, the tips and examples. Also, if you have any doubt, you can just put them down in the comment section. I'll be very happy to help and will try to cater them in our next classes. Now, let's talk some important facts or points. Nouns के gender. Okay? Gender of nouns. Masculine, feminine, neuter. Lion, lioness, king, queen. Neuter वो सब होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इनका कोई जेंडर नहीं होता. हमेशा नाउन्स रेगुलर प्लूरल रूल्स फॉलो नहीं करते. आई एम एम्फेसाइजिंग, लिसन इट अगेन. हमेशा प्लूरल नाउन्स, रेगुलर प्लूरल नाउन्स प्लूरल रूल्स फॉलो नहीं करते. जैसे कि चाइल्ड चाइल्ड्स नहीं होता, फुट्स नहीं होता, टूथ्स नहीं होता, दे बिकम चाइल्ड, चिल्ड्रन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, पर्सन, पीपल, men, men, men. Okay? Compound noun. ऐसे nouns जिनको combined किया जाए to make compound nouns. दो nouns को combine करके compound noun बनता है. जैसे tooth plus brush, toothbrush, sister plus law, sister-in-law. Possessive nouns भी होते हैं जो ownership दिखाते हैं और apostrophe के साथ खत्म होते हैं, जैसे कि John's book. Ria's guitar. रिया का गिटार. जॉन की बुक्स. रूपल की क्लासेस. ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, ये की दर्शा रहा है, की ओनरशिप की, ये चीज उसकी है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल्स एंड नाउन. आपको पता होना चाहिए व्हेन टू यूज आर्टिकल्स ए एंड द विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. ओके, कि सिंगुलर के साथ आर्टिकल्स लगेगा और प्लूरल के साथ सिर्फ जरूरत पड़ने पे आर्टिकल लगेगा. ओके, नाउ आई जस्ट समराइज. Noun are words that name people, places, things, animals or ideas. They can be proper, common, abstract, concrete, collective, uncountable, and countable. We have understood the types and characteristics also. एक जो point था कि proper noun हमेशा capital letter से शुरू होते हैं, common noun हमेशा capital letter से शुरू नहीं होते हैं जब तक वो sentence के शुरू में नहीं आ रहे हो. ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं विच विल हेल्प यू टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग. Thank you for listening. Understanding noun and their types is essential for mastering English grammar. Like practicing, identifying them, using different types of nouns actually enhance your grammar skills, and especially for school and competitive exams. And I hope you liked the video. If you did, please like, share and subscribe. That motivates me to do better. I am eventually learning a lot from you as well and with you as well. Thank you so much. Bye bye. See you again.